So make it simple. Try to make it simple. The formula is ABC and 1, 2, 3. Try to be large data into the small pieces. 1, 2, 3. Just what is philosophy is all about. So keep in mind if you want to be answer it out. If you have an BCQs in your exam as well. So you will be keep in mind with the acronym of WOW: wonder, opinion, and the wisdom. So philosophy is love for wisdom. Philosophy is a curiosity, asking a basic fundamental question about the nature of yourself, about the nature of universe as well. And the opinion, what does it mean? The philosophy begins with the conflicting of different opinion. And we can derive also from this definition as well the value of philosophy. अगर हम पूछें कि भाई what is the outcome of it, कि हमें पढ़ के philosophy या फलसफा क्या मिलेगा, why we need it, what we get out of it. So we have a 3 learning objective from the philosophy. Number 1, the learning outcome of philosophy is to make you a critical thinker. Number 1, critical thinker. Critical thinking is the ability that you get from that course. And the second is multiple perspective. As you know that we are living in an information age, we are living in a era of where the bombardment of information. So we must have to be re-examine or scrutinize the data we have around us. और आज के दौर में तो हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे शुरू है, ठीक है. तो इसलिए जानना ये ज़रूरी है, उसको एक री-एग्जामिन करना, री-थिंक करना. सो दैट्स व्हाई द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, वाइडर पर्सपेक्टिव एंड मल्टीपल पर्सपेक्टिव. बहुत सारे लोग कहते हैं कि देयर इज अ मिथ अबाउट द फिलॉसफी कि दे हैव अ क्वेश्चन, द फिलॉसफर हैव अ क्वेश्चन बट दे नेवर गिव अ वन राइट आंसर. बट दिस इज जस्ट अ मिथ, दिस इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन अबाउट इट. They have a question, but we have a multiple perspective to see the same things, like human nature, the free will, the existence of God, the reality of a universe. So we have a multiple answers. बहुत सारी philosophical positions होती हैं. So for just for the sake of giving some analogy and example, I will put today in the lecture some philosophical debate as well. अब उतना हम टैप तो नहीं जा पाएंगे बड़ा जानने के. We have a very few sessions we have. और इट जस्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ फिलॉसफी. सो बट फिर भी हम उसको कवर अप करेंगे. उसमें जो डिबेट्स हैं, मोस्ट कॉमन फिलोसफिकल डिबेट्स हैं, उसको हम ज़रूर डिबेट में पार्ट बनाएंगे. द सेकेंड थिंग इज दैट, मैं इसको दोबारा से सम अप करता हूँ. तो व्हाट आई से दैट व्हाट इज द फिलॉसफी इज ऑल अबाउट लव फॉर विजडम. इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इंसाइट, परस्यूट फॉर द विजडम, एंड लर्निंग आउटकम ऑफ फिलॉसफी इज टू मेक यू व्हाट, द क्रिटिकल थिंकर. Okay, all right. Now the third question, now I put with you that why we need it. What is the use of it? What is the value of philosophy as a medical educationist, as a being of your field? So how you can relate it? अच्छा, जितने भी आप different subjects disciplines बनते हैं, आपको पता है interdiscipline होता है, और academia जो होता है उसमें आपके पास बहुत सारे major, minor, sub-C. So we try to be built link with your core subject as well, but there is some essence of each subject as well. For example, आप इस्लामियत पढ़ते हैं तो उसकी कोर तो वही रहेंगी. अब अकीदा आखिरत पढ़ेंगे तो, लेकिन आप अकीदा मेडिसिन तो नहीं पढ़ेंगे, बट उसको रिलेट करेंगे. इसी तरीके से इफ़ यू वांट टू गो फॉर द एथिक्स, तो आप बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल तो इट रिमेन द सेम, बट यू विल बी ट्राई टू रिलेट विथ योर फील्ड, तो इट बिकम अ बायोएथिक्स. ऐसे ही जस्ट लाइक दैट, how you can relate the philosophy with your field as well. Okay, you are in a first module, first semester, so later on after the completion of the 5 years of graduation, might be research में, practicing में, या आप academy ज्वाइन करते हैं, academia के person बनते हैं, तो वहाँ पे आपको कहाँ help out होगा. तो philosophy के लिए philosophy of medicine, right? Philosophy of medicine is a school of discipline, is a medical discourse. और we have a many multiple philosopher, जैसे मिशेल फूको एक फ्रेंच फिलोसोफर है, उसने बहुत काम किया था. बर्थ ऑफ क्लीनिंग बहुत ज़बरदस्त बुक है, आपको पढ़नी चाहिए ज़रूर. उसमें मेडिकल बेस का कॉन्सेप्ट है. बर्थ ऑफ क्लीनिंग, पोस्ट मॉडर्निस्ट है. पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स वो होते हैं जो रिसेंट होते हैं, कंटेम्प्रेरी 21st सेंचुरी फिलोसफर. इसी तरीके से मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जिसमें उसने मैडनेस और इलनेस को, डिजीज़ को सोसाइटी और सिविलाइजेशन से लिंक किया है. बहुत क्लासिकल आइडिया है. इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट, बड़े की नोट्स हैं जो, ऐसी बात है
आज के ज़माने में आपके पास डाटा की बम्बार्डमेंट है, आपके पास एआई है, ChatGPT है, मल्टीपल सोर्स हैं, तो आप क्लिक के ऊपर इतना सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जितना हम लेक्चर स्लाइड्स में या कंटेंट यहाँ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उससे ज़्यादा कंटेंट आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ रेस या विन कंटेंट को बताने की नहीं है, डाटा को मेमोराइज करके रिकॉल करने की नहीं है, बल्कि उसकी विजडम देने की है, उसका द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूज। तो मैं कुछ कीवर्ड्स बोलता हूँ जो कि आप नोट करें ताकि उसको आप फिर डिटेल में स्टडी कर लें थॉरली। जैसे कि वन मोर की आइडिया दैट इज कॉल्ड बायोपॉलिटिक्स, बायोपावर। दैट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, the power that is exercised on your body, on your the knowledge structure with yourself, right? Biopower, biopolitics, that is a new concept that relate philosophy with the medicine as well. और भी बहुत सारे ऐसे concepts हैं जिसमें ethical dilemma, moral dilemmas जो connect करते हैं आप। और रिसर्च के अंदर भी फिर बहुत सारे आपको पैराडाइम्स मिलेंगे। रिसर्च पैराडाइम जो है, जो रिसर्च मेथोलॉजी होती है, डिजाइन होते हैं, वहाँ भी फिलोसफिकल हेल्प आपको मिलेगी। बहुत सारी बेसिक टर्म्स हैं। और फिलॉसफी कोई, मैंने पहले भी कहा कि कोई सेपरेट डिसिप्लिन नहीं है। ये फिलॉसफी मीन्स व्हाट इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो सोशल हो। इट मीन्स व्हाट इट मीन, इट इज द रूट ऑफ ऑल, यू कैन से दैट वी वांट टू बी ट्राई टू गेट द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग, कि कोई चीज़ कहाँ से कब कैसे शुरू हुई। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि हमने हमेशा से क्या हुआ कि पहली बात तो वी नेवर रेज अ क्वेश्चन, वी हैव अ प्रैक्टिस, वी इंक्लूडिंग मी, we have our practice to raising never raise a question. We just blind follow the all those information that we have, चाहे वो हमें मल्टीमीडिया सोशल मीडिया पे हो या हमारे पास इधर हो, तो हम कभी भी क्वेश्चन रेज नहीं करते हैं, है ना, ऐसे ही है। तो मैंने कहा जैसे कि, तो here we have the branches of philosophy. Today we are going to explore more the branches of philosophy. Okay, all right. The first ever, the most you can say the most basic fundamental question that everyone come into the mind और that relate to the nature of human, यानी इंसानी फितरत है, वो क्या है, क्यों, क्या, कैसे, मुझे किसने बनाया, ठीक है, खुदा कौन है, ठीक है, खुदा का वजूद क्या है, फिर खुदा, इंसान और कायनात, गॉड, मैन एंड यूनिवर्स, इन सब का रिलेशन है तो क्या है। तो हमारे पास तो बस सिर्फ क्या है, दास्तानें, कहानी है ना, कि हिकायत जब भी सुनी तो दरमियान से सुनी, ना इब्तिदा की ना इंतहा मालूम। इट मीन्स व्हाट, वी नेवर रेज अ क्वेश्चन, वी नेवर रेज अ क्वेश्चन, वी नेवर डेयर टू आस्क अ बेसिक क्वेश्चन। तो दो फिलोसोफर आर दो वो at least they come up with some sort of question as well। जैसे कि एंशिएंट एरा में बहुत सारे जो मिथ थे, मिथोलॉजीज थी, उसके साथ कनेक्ट थे। अच्छा, वो इमेज मैं दिखाता भी हूँ, जैसे आप लोग का जो सिंबल्स एंड साइन है, जो साइंस आपने देखा हो ना, हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं और एक साइन यूज होता है मेडिसिन के अंदर, वो स्नेक्स बने हुए, तो देखेंगे वो गॉड ऑफ मेडिसिन, वो एक मिथ था कि वो गॉड ऑफ मेडिसिन है, वो हील करेगा, उससे हम प्रे करेंगे, मिथोलॉजीज थी। बट नाउ वी हैव अ रैशनल, हिपोक्रेट ने बताया कि भाई वी हैव अ 4 बाइल्स, ब्लैक बाइल, व्हाइट बाइल, येलो बाइल, राइट बाइल। और बाइल मीन्स मतलब कोई कि देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दीस 4 एलिमेंट, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, आग, हवा, मिट्टी, पानी, बेसिक एलिमेंट यही है। इनमें अगर सफिशिएंसी हो या डेफिशिएंसी हो, दैट मेक अस इल, दैट मेक अस द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। कोई मिथ नहीं है, कोई सुपरस्टिशियस बिलीफ, कोई भूत, प्रेत, आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ साइंस। वी कैन से वी आर कम अप विद सम नेचुरल क्वेश्चन। So we can say that philosophy begins with the rejection of all mythology. Myth समझते ना, myth क्या होती है, superstitious belief. So we have the oldest branch of philosophy, the first ever, you can say the subject, we can say the metaphysics. So metaphysics means the nature of reality. इतने मुश्किल टर्मिनोलॉजीज हैं, आप चाहें तो उसको make it simple. Metaphysics, meta means the beyond and physics means the physical. So metaphysics mean beyond physical। और आज तो मेटा बहुत ही कॉमन वर्ड है, एक लार्ज कॉर्पोरेशन ने इसको इंट्रोड्यूस की। वो जी, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे साइकोलॉजी, उनको बैठने से अलाउ कर दें। ये भी फिलॉसफी की स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बस खामोश बैठना है तुम लोगों ने। अच्छा, मेटा मीन्स बियॉन्ड और फिजिक्स मीन्स फिजिकल। सो मेटाफिजिक्स मीन बियॉन्ड फिजिकल। So we have a beyond physical, we have 2 kinds of entity, the physical entity and the non-physical entities। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स डील करेगी those things which can be seen, which can be touched, जैसे कि मैटर है, एटम है, लाइट है। बट नॉन फिजिकल भी है जिसमें सोल है, स्पिरिट है, या फिर ह्यूमन नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, या खुदा का तस्वुर है, तो ये तो नॉन फिजिकल है। So that also come into the
ब्रांच ऑफ फिलोसफी। देखिए रियलिटी के डायमेंशंस क्या हैं? रियलिटी हैज 3 डायमेंशंस, गॉड, मैन एंड द यूनिवर्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, और मल्टीपल रियलिटीज का कॉन्सेप्ट है। जैसे आज के इस मॉडर्न पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आप कहते हैं ना कि ये डिबेट है, पहले कहते थे यूनिवर्स, यूनिवर्स द वन, बट अब क्या कहते हैं नाउ? मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, ऐसा आप साइंस फिक्शन जेनर में कितना सुनते हैं, देखते हैं। अब क्या उसकी हकीकत है या वो एक बस एक फैंटेसी वर्ल्ड है? क्या वाकई उसकी कोई एकेडमिक बैकग्राउंड है? क्या उसकी कोई रियलिटी है? भी टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है ना, कभी आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो वो ऐसा कोई रियल है या नहीं है या कुछ, क्योंकि ये तो हम ट्रांसेंडेंट नहीं कर सकते ना। हम इस अर्थ से जुड़े जो नॉलेज है उसको हम रैशनल बेसिस पे देख सकते हैं अपने सेंसेस को यूज करते हुए, बट व्हाट कम्स इन द यूनिवर्स? अब जैसे स्टीफन हॉकिंग है, वो ग्रैंड डिजाइन लिख रहा है, ठीक है, और वो सोलर पे और एस्ट्रोफिजिशियंस बात कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे, क्या थॉट एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं या वो जा रहे हैं स्पेस में? तो ये सारी डिबेट्स जो है वो मेटाफिजिक्स में आ जाती हैं। उसके बाद फिर एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमी के मायने क्या होता है? नॉलेज, ऑल दोस क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू नॉलेज, जैसे कि हाउ डू वी नो, कैन वी नो समथिंग, इज देयर अ लिमिट ऑफ नॉलेज, या व्हाट इज नॉलेज इज ऑल अबाउट। जब हम कहते हैं ना इल्म, तो क्या है? नोअर कौन होता है? नोइंग क्या है? नोइंग कोई एक एलिमेंट है? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ नोइंग ऑन विच वी कैन रिलाई ऑन? मैं कौन से सोर्स पर रिलाई करूं? अब ये वो सोर्स नहीं है, दिस इज अ फिलॉसफी क्लास, आप कह नहीं वो बुक, इंटरनेट, टेक्स्ट बुक, नहीं, ये नहीं होगा। सोर्स मीन्स द माइंड, सोर्स मीन योर हार्ट, सोर्स मीन योर इंट्यूशन, इनर सेंस, ठीक है, जो गट फीलिंग है। और सोर्स मीन्स हम कभी कभार जो जैसे रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वो डिवाइन, कशफ, मकाशफा, वही रिवीलेशन, ये भी तो एक सोर्स है, उसको भी तो डिनाई नहीं कर सकते सोल की तरफ से। तो इस तरह के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं। तो लिमिट देखें, वेस्टर्न और ईस्टर्न पर्सपेक्टिव थोड़ा सा दोनों ही हम डिस्कस कर लेते हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो होता है तो उसमें माइंड, रैशनैलिटी, रीजन, लॉजिक, साइंस, ये डोमिनेटिंग की फैक्टर्स। मैं ये नहीं कह रहा क्या सही क्या गलत है, हमें तो सब पढ़ाना है, बायस नहीं होना। इसी तरह जो ईस्टर्न पर्सपेक्टिव है वहां आपको फेथ, इमोशन, दिल, कल, राइट, रूह, वो कहते हैं ये भी एक, जैसे इब्न सीना, एवसीना, द मुस्लिम थिंकर एंड फिलोसोफर, तो उसने बताया द सोल इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी। जैसे कि 5 बॉडीली सेंसेस होते हैं, इसी तरह उन्होंने अरवा की, रूह के भी सेंसेस बताए, हवास सेंस को कहते हैं ना, कि समा, बसर, कलाम, समा देखने को, बसर सुनने को, बसीरत कलाम बोलने को। तो उसने कहा जैसे कि बॉडी के 5 सेंसेस हैं, तो रूह के भी सेंसेस होते हैं। तो ये, या वो डीजावू जैसे कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है कि देयर इज आल्सो द सब्जेक्ट एज वेल। हम तो एक पर्सपेक्टिव लेके दूसरे को भूल जाएं तो ये तो फिर ट्रुथ नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है एक्सियोलॉजी। एक्सियो के मायने होते हैं वैल्यू। ये बहुत सारे, देखें एक बात छोटी सी बता दें, 3 नेशंस ऐसी हैं इंटेलेक्चुअली जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है हिस्टोरिकली, ग्रीक, रोमन्स, जिनका लैटिन कंटेंट हमें नजर आएगा, और फिर मिडिवल पीरियड जिसके अंदर ये जो पर्शियंस, अरबिक फिलोसोफर्स हैं। तभी आपने देखा होगा, चाहे मेडिसिन पढ़े या कुछ भी पढ़े, तो आप देखेंगे दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक, दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन, दिस वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम पर्शिया। ऐसा है या नहीं? बहुत सारे, जैसे अल-किलाई, अल-किमाई, अल्गोरिथम, वो अल क्योंकि उस जमाने में वो अल-राजी, अल-किंदी अरबिक पर्शियन वर्जन है, या फिर ज्यादातर ग्रीक वर्ड्स होते हैं। जैसे आपके पास भी इसी तरह से देखा होगा ना, हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी, तो वो लॉजी, ये ग्रीक वर्ड्स ऐसे ही थे। एपिस्टेमोलॉजी, नेवर बी अफ्रेड ऑफ दिस वर्ड, लॉजी मींस द स्टडी, एपिस्टीम के मायने होते हैं नॉलेज। मेक इट सिंपल, वर्ड्स लफ्जों में लफ्ज के ना रह जाए, लफ्जों को याद करके हमें किसी को इंप्रेस नहीं करना है कि मुझे बहुत सारे लफ्ज आते हैं बोलना, बल्कि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि उसके मायने क्या हैं, उसकी विजडम, जो हम बार बार आपसे यही कह रहे हैं। तो एक्सियोलॉजी, वी हैव, दीज आर द क्वेश्चंस, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, एस्थेटिक, दीज आर द सब ब्रांच ऑफ इट। तो आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल इनटू 3 ताकि याद रखने में आसानी रहे। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एंड द थर्ड इज एक्सियोलॉजी। हियर इज अ क्वेश्चन, हियर इज अ सम कॉमन क्वेश्चन जस्ट लाइक दैट, व्हाट इज रियल, व्हाट इज द मोरल वैल्यूज, राइट, व्हिच वन इज रियल? रियलिटी एंड द अपीयरेंस, है ना, अपीयरेंस एंड द रियल, व्हाटएवर अपीयर इन फ्रंट ऑफ अस, हम उसको यकीन माने ना माने, क्या है ना, कहते हैं ना, आंख जो कुछ देखती है वो लब पर आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। लेकिन वो कब? when you have a vision, when you come up with some sort of rationality or the reason, तब आपको दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अदरवाइज तो जो दुनिया है जैसी है वो वैसी ही चलती चली आ रही है,
ये व्हेन वी देखें ना, नोमेना एंड द फिनोमेना। फिनोमेना जो अपीयरेंस है, बज़ाहिर है, और नोमेना द रूट कॉज ऑफ इट। जैसे बहुत सारी चीजें हमें सिम्टम्स आप देखते हैं तो आप डायग्नोज करते हैं, तो वो एक तो फिनोमेना है, मुज़र है, नजर आता है, और नोमेना जो उसकी रूट है। फिलोसोफर आर दोज हु ट्राई टू गेट द रूट कॉज ऑफ, कोर क्या है, असल रूट क्या है इसके पीछे। तो खैर एनीवे, हियर वी हैव अ क्वेश्चन, और ये सारे वो क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज रियलिटी। अब ये सारे एक हैपहैज़र्ड फॉर्म में क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब आप लोग के लिए फॉर द बिगिनर, आपको हम ये कोशिश करेंगे इसको कैटेगराइज कर लें, हम ये आइडेंटिफाई कर लें एटलीस्ट फ्रॉम विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू। वी हैव अ थ्री मेजर ब्रांच, वन इज metaphysics, number 2 epistemology, and third is axiology। और यही आपका एग्जामिन होगा। एग्जामिन में आपको एक स्टेटमेंट होगा, एक क्वेश्चन है, और यू मस्ट हैव टू बी आइडेंटिफाई। मैं आपको एक सैंपल मॉडल यहाँ पे आखिर में एमसीक्यूज में दिखाते हैं। तो यू हैव टू बी आइडेंटिफाई फ्रॉम विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू। आइदर इट इज अ मेटाफिजिकल डिबेट, either it is a epistemological, either it is a axiology। Now we make some practice. What is truth? So we are raising the question on the truth and reality belongs to metaphysics. What is reality? The real which we see from the human eye, or not? To that kind of question, reality, the nature of reality belongs to again metaphysics. Then what is knowledge is all about? Epistemology, the second branch. What is life या meaning of life, the origin of life? अब it depends on axiology, the values ना, values। अब आपकी ethical values क्या हैं, आपकी individual values क्या हैं, आपकी aesthetical values क्या हैं, तो ये तो ethical, political, aesthetical हो गया। इसको हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको कुछ ब्रांचेस को फर्दर मैं एलोबरेट करूंगा, फिर दोबारा ये क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इसे ना who am I? अब who am I? That is a question, that is you are raising the question on your existence कि who we are, आखिर हम क्या हैं। मेटाफिजिक्स बिल्कुल सही कहा आपने, ontological question है। So we further divided the metaphysics into 3, right? Metaphysics is what? It's all about the nature of reality, or what I told you, the reality has 3 dimension, God, men and the universe। जैसे कि आपने सब्जेक्ट्स को स्पेशलाइज कर लिया, डिफरेंट डोमेन्स बना दिए, जस्ट लाइक दैट दोज फिलोसोफर who are too much concerned with the existence of God, तो उसको हम कहते हैं theology, the C, theology। Theo means the God। Theologians are those thinkers who have a lean toward the question, rational argument on the existence of God, God intervene or not, God exist करता भी है नहीं करता, इंटरवीन करता है हमारी लाइफ में, उसका क्या रोल प्ले है, या तकदीर किस्मत में जो कुछ है ना, होनी को कौन टाल सकता है, खुदा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन एक्शंस आर फ्री और नॉट। इस तरह की डिबेट्स, ये सब फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म की डिबेट है, या ऑन्टोलॉजिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ये सब किस में आती है? ऑन्टोलॉजी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मैन। जैसे कि आपकी जो मेडिकल साइंसेज है उसका भी क्वेश्चन अगर देखें तो आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है? ह्यूमन, फिजियोलॉजिकल हो चाहे वो, बट ह्यूमन तो है, ह्यूमन ही तो सब्जेक्ट मैटर है। तो आप ऑन्टोलॉजी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन। अब लेकिन उसका कौन सा एक्सपेक्ट देख रहे हैं, माइंड बॉडी सोल में से, ये एक फिर एक अलग डिबेट है जिससे आप थोड़े से डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, ठीक है। फिर कॉस्मोलॉजी, एज यू सी, कॉस्मो मीन्स, कॉस्मो किसे कहते हैं? कॉस्मो यूनिवर्स को कहते हैं, ठीक है। ऑल दोज क्वेश्चन यानी रिलेटेड टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स में स्टार्स हैं, ऑल सेलेस्टिकल बॉडीज। सो ontology means existence of man, cosmology existence of universe, and theology existence of God। so इस तरह से आप इसको क्लासीफाई कर लेंगे मेटाफिजिक्स को। बहुत सारे कमेंट्स हैं मेटाफिजिक्स के बारे में। ये कहा जाता है कि आज के ज़माने में जो मॉडर्न साइंसेज हैं, मॉडर्न एरा है, वो ये कहता था कि मेटाफिजिक्स इज नाउ आउटडेटेड, क्योंकि हम बहुत रैशनल हो गए हैं, मॉडर्न मैन है, साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजिकल है, तो वी डोंट नीड टू बी स्टडी अबाउट द कॉस्मोलॉजी। सितारों में, सैयारों में क्या हो रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स मैटर हाउ लॉन्ग वी लिव एंड हाउ शुड वी लिव। जो हमें 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स मिल रहा है, उसको हम कितना बेहतर बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आउटडेटेड है, लेकिन ऐसा, मैं फिर वही बात कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन बहुत से ये कहते हैं मेटाफिजिक्स जो है वो एक फर्स्ट फिलॉसफी तो है, बट ये आउटडेटेड है, नो यूज ऑफ इट, स्पेसिफिक पीपल है, इसका क्या करें, क्योंकि
ये दो क्वेश्चन उसमें रेलेवेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आज के ज़माने में एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो पूरा सब्जेक्ट है जो यूनिवर्स के बारे में। आज आपको पता है स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बड़ा मिशन बना हुआ है लार्ज कॉर्पोरेशन की तरफ से, कि किस तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनको नए रिसोर्स एक्सप्लोर कर लें और फिर दुनिया में कुछ नया इन्वेंट कर लें, है ना। एनीवे दैट्स माय कमेंट ओवर इट। मेटाफिजिक्स क्या है इन सिंपल वर्ड? व्हाट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द रियलिटी। और हमने मेटाफिजिक्स को बीइंग समझते हैं ना, बीइंग। अब बीइंग में हमारे पास कितने बीइंग्स हैं? वन इज ह्यूमन बीइंग, द बीइंग मीन्स द एग्जिस्टेंस, इंसानी वजूद, ह्यूमन बीइंग्स। एक सुप्रीम बीइंग, सुपर नेचुरल बीइंग। अब माने या ना माने, हर जगह कोई ना कोई अलग नामों से कहे, चाहे वो आइंस्टाइन उसको कहे कि फर्स्ट कॉज, फर्स्ट मूवर, कोई कहे उसको डार्क मैटर है, कोई कहे कि वो डार्क एनर्जी है, कोई कहे फर्स्ट एनर्जी है, नाम कोई भी ले, बट समवन बिलीव दैट देयर इज अ सम। कोई कहे यूनिवर्सल विल है, कोई कहे खुदा कहे, कोई भगवान कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई कुछ भी नाम दे, बट देयर इज अ सम, देयर इज अ कॉन्सेप्ट। तस्वुर खुदा तो हर एक के जहन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, कि देयर इज अ सम सुपर डीइटी, सुपर नेचुरल बीइंग। तो एक बीइंग तो ह्यूमन बीइंग हो गया, और एक क्या है सुपर नेचुरल बीइंग। और इनका रिलेशन भी रहा है, मैं फिर आपकी फील्ड से रिलेट करता हूँ। जैसे कि डिजीज, वो कह रहे हैं खुदा आपसे रूठ गया, नाराज हो गया, इस वजह से डिजीज आ गई है। अब आप नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट भी बीमार हो सकते हैं, हो सकता है आपने केयर नहीं की हो। सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट भी है, जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं कि केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी सेल्फ केयर, केयर ऑफ द सेल्फ, ये आपका जो है कॉन्सेप्ट है डिजीज के पीछे। और ये पहले क्या कह रहे हैं मिथिकल एरा में, कि नहीं तुम नाफरमान हो, बीमारी का मतलब कर्सेस है, बीमारी का मतलब खुदा की तरफ से, तो तुम क्या करो, जल्दी से खुदा रूठे को मनाओ। अब खुदा को मनाने के लिए कभी वो गीत गा रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं, अलग अलग जो उनकी रसूमात होती थी पहले, ग्रीक हो, रोमन्स हो, इजिप्शियंस हो, या माजी में सारा कुछ। अब पता नहीं अभी भी हम निकले नहीं निकले उन चीज़ों से, लेकिन नाउ वी हैव अ साइंस जो उसको एनालिसिस करेगी और बताएगी कि भाई क्या रैशनल रीजंस हैं। तो खैर मेटाफिजिक्स जो है, दोबारा रिपीट, द बीइंग, ह्यूमन बीइंग, द सेकंड इज सुप्रीम बीइंग, और थर्ड है द थिंग इटसेल्फ, यानी बीइंग इटसेल्फ, अशिया, शय, चीजें जो हमारे इर्द गिर्द है, सराउंड है, इनकी हैसियत क्या है, ये क्या है, ये रियल है, मैटर है, नॉन मैटर है। तो ये सारा कुछ अब इसी तरह ये देख सकते हैं आप। हु एम आई, ये क्वेश्चन है, ये आपकी मेटाफिजिकल डिबेट में आता है। व्हाई आई एम हियर, ठीक है। व्हाट इज बियॉन्ड फिजिकल, यानी नॉन फिजिकल एंटिटी पे सवाल। एसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल, सिंपल, मेक इट सिंपल, आसान करके, जो लाजिम है, जिसके बगैर, जैसे एक कोई भी हम ये जैसे प्रोजेक्टर देखें तो उसका लेंस है, वो उसकी एसेंशियल एलिमेंट्स, इसकी जिसकी वजह से ये विजुअलाइजेशन मुमकिन नहीं थी, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी, उसकी एसेंस क्या है? सेल है ना, इसकी एसेंस सेल है। तो ह्यूमन के अंदर क्या आप कहेंगे? सेल है, टिश्यू है, हार्ट है, जो भी कुछ कहें, माइंड है, बॉडी है, सोल है, तो दिस इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। देन व्हाट इज रियल, ठीक है। क्या मैटर रियलिटी एज अ मैटर है, या रियलिटी एज अ नॉन मैटर है? रियलिटी एज अ फिजिकल है, या रियलिटी एज अ नॉन फिजिकल? दैट्स अ डिबेट। तो ये सब मेटाफिजिकल डिबेट में आता है कि व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज रियल, और ह्यूमन एक्शंस इज फ्री और नॉट। अब इसको लेके तो तीन अप्रोचेस हैं। दीज आर द थ्री अप्रोचेस ऑफ philosophy. You can say that some philosopher believe that there is only one dimension of reality, there is only the one reality, or they are said to be monoists. Mono means the one, so monoism, and ism means an idea. Ism पढ़ते हैं ना, realism, idealism, pragmatism, scientism. What means ism? means idea. So monoism, यानी those who believe in one idea, कि सारी रियलिटी अल्टीमेट वो एक ही है, अब चाहे वो मैटर हो चाहे वो नॉन मैटर हो। जैसे कोई ये कह दे कि हर चीज एक मैटर से बनी है, एवरीथिंग इज मैटर, नथिंग एक्सिस्ट एक्सेप्ट एटम। एक फिलोसोफर है डेमोक्राइटस, डल्टन से भी पहले का, डल्टन आप यानी डल्टन ने बताया था, डल्टन एटॉमिक थ्योरी में नहीं, ग्रीक एरा में डेमोक्राइटस है जिसने कहा नथिंग एक्सिस्ट एक्सेप्ट एटम, बाकी तो वैक्यूम है, जो एम्प्टी स्पेस है वो सब नॉन फिजिकल एंटिटी है। तो इसी तरह की बात समझ आ रही है आपको। मोनिस्ट कौन है? दोज हु बिलीव, या फिर वो बुद्धिस्ट हिंदुइज्म में बिलीव है क्या, कि भाई सब आत्मा है, सब ब्रह्म है, सब जो है वो एक सोल है, यूनिवर्सल सोल है। तो भाई ये रियलिटी हो गई, उनकी नजर में रियलिटी क्या है? ओनली द वन थिंग। अब वो वन थिंग चाहे वो मैटर हो चाहे वो नॉन मैटर हो,
दोज हु बिलीव इन वननेस, कि रियलिटी जो है, चाहे वो गॉड की हो, चाहे वो मैन की हो, चाहे वो यूनिवर्स की हो, हर चीज उसी चीज से बनी है, हर चीज मैटर से बनी है, हर चीज सोल से बनी है, हर चीज जो है वो एक स्पिरिट है। तो दैट इज कॉल्ड द मोनस। क्लियर हो गया? एंड द सेकंड वन इज डुअलिज्म, दोज हु बिलीव इन टू एंटिटी, जैसे कि माइंड एंड बॉडी, जैसे कि बॉडी एंड मैटर, जैसे कि बॉडी एंड सोल। सबसे पॉपुलर डिबेट तो कौन सी है? माइंड एंड बॉडी। ये माइंड बॉडी प्रॉब्लम सुना होगा ना आपने, ये डिबेट सुनी है आपने, बहुत बहुत रिसर्च में बहुत होती है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, है ना। तो माइंड बॉडी एंड सोल, ये तीनों हो गए ना, 3 एंटिटीज हो गई, माइंड बॉडी एंड सोल, या माइंड बॉडी प्रॉब्लम। तो ये डुअलिज्म, डुअलिस्ट दोज हु बिलीव इन कि माइंड आल्सो हैज एन इन्फ्लुएंस, द बॉडी आल्सो हैज एन इन्फ्लुएंस। तो ये फिलॉसफिकल, ये मेटाफिजिकल डिबेट को डुअलिस्ट कहते हैं। ऐसे थिंकर्स दोज हु बिलीव इन डुअल रियलिटी, कि रियलिटी, अब जैसे बीइंग अ मुस्लिम आप कहें कि भाई हमारे पास सोल इज द रियल वन, लेकिन हम बॉडी को तो निग्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम कहते हैं कि बॉडी इज अ मीडियम। अब वो कैद है, पिंजरा है और आजाद होगा, वो एक अलग बात, मगर उससे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब वी बिलीव इन बोथ, कि वी आर बॉडी एज वेल एज सोल एज वेल। हाँ, सोल हम कहेंगे कि ठीक है, वो अमरे रब्बी है, वो ट्रांसजेंडेंट कर जाएगी, उसको हम कहते हैं मुंतकिल हो जाएगी, इंतकाल कर जाएगी, लेकिन बॉडी तो वही आपकी सारी डिकम्पोज हो जाना है, उस तक नहीं रह जाना है। तो खैर ये कॉन्सेप्ट ड्यूलिस्ट हो गया, जो बॉडी और सोल को भी मानते हो, बॉडी को भी मान रहे हैं, सोल को भी मान रहे हैं, माइंड को भी मान रहे हैं, बॉडी को भी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दे बिलीव इन टू, वो कह रहे हैं हाँ हर चीज मैटर से बनी है, लेकिन कुछ चीजें नॉन मटेरियल भी हैं, सब कुछ मटेरियल नहीं है, कुछ नॉन मटेरियल एग्जिस्टेंस भी अपनी जगह मौजूद रखती है। अब एक लास्ट है, ये है प्लूरिस्ट, और ये आज के ज़माने के जो थिंकर्स हैं वो उनका मानना ये कि मैनी मल्टीपल थिंग्स आर इन्वॉल्व, मल्टीपल रियलिटी, रियलिटी कोई एक नहीं है, रियलिटी क्या है? मल्टीपल रियलिटी है। प्लूरिज्म, मोर देन वन, जैसे फायर, वाटर और जैसे 4 एलिमेंट्स है, अब तो 4 नहीं है, केमिस्ट्री का पूरा पीरियोडिक टेबल बन गया है ना, कितने सारे आपके सामने, यूरेनियम, क्रिप्टॉन, तो पोटेशियम और मैग्नीशियम, और नए नए एक्सप्लोर होते चले जा रहे हैं, ऐड ऑन होते चले जा रहे हैं। तो दीज आर द एलिमेंट दैट मेक अस। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी आल्सो इज अ, वी आर, मैन इज अ माइक्रोकॉस्मिक, हमारे अंदर वही सब कुछ है जो कि पूरी कुल कायनात में है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, चाहे वो उसकी रेशियोज कम हो, बट ये दिस बिलीव इन प्लूरिज्म, कि नॉट ओनली हम सिर्फ इंसान को हम एक एस्पेक्ट से नहीं देख सकते कि हम सिर्फ सोल हैं, हम सिर्फ न्यूरॉन्स, ब्रेन है, केमिकल, इमोशन, या हम सिर्फ जो है वो माइंड। दिस इज द प्लूरिज्म, कि वी हैव अ मल्टीपल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये एक डिबेट है जिसमें बहुत से नाम हैं, थैलीस फर्स्ट फिलोसोफर है, फिर बहुत सारे और नाम है, पार्मेनिडाइज, एनाक्सागोरस, डेमोक्रिटस, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि मटेरियलिज्म क्या कहलाता है। मटेरियलिज्म मींस ये एक फिलोसफिकल डिबेट है रियलिटी की, ये मेटाफिजिकल डिबेट है, जो ये बिलीव रखते हैं कि रियलिटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? मैटर। अब ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है, एंशिएंट एरा में वो मैटर को ही कहते थे, फिर मिडिवल पीरियड जो आता है, मिडिल एज, उसमें उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं मैटर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो रिलीजन का डोमिनेशन था। फिर ये मॉडर्न पीरियड आया जो कि साइंटिफिक एरा है, फ्रांसिस बेकन, कोपर्निकस, गैलीलियो, आइंस्टाइन वगैरह। तो फिर वहाँ साइंस ने कहा कि नहीं, अब जैसे ना आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपने नहीं भाई सिर्फ न्यूक्लियस में यही नहीं है, 10 to the power -21 नैनो पार्टिकल्स हैं। एटम की डेफिनेशन ये नहीं है कि विच कैन नॉट बी एटम, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, वो तो आउटडेटेड किस्म का हो गया। अब तो इतने टाइनी पार्टिकल्स हैं विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द ह्यूमन नेकेड आई, जिसको आप क्या कहते हैं, वो क्वांटम फिजिक्स और पता नहीं कॉर्क वगैरह, बहुत सारे नाम है ना। तो ये दिस व्यू गिव यू दैट द मोर new concept of materialism, यानी matter is now transformed into energy, है ना, mental energy, cosmic energy, ऐसे नाम सुनोगे तुम लोगों ने, यूनिवर्सल एनर्जी है, पूरी यूनिवर्स को चला रही है, मेंटल एनर्जी है, ह्यूमन बॉडी को चला रही है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ऐसे कॉन्सेप्ट सुने आपने। यानी these are the you can say the modern perspective of what? Materialism। सही है, जैसे वो बिग बैंग की बहस है कि बिग बैंग है और उसके बाद इवोल्यूशन हुआ और सब कुछ हुआ, लेकिन बिग बैंग में जो फर्स्ट एक्सप्लोजन हुआ उसकी वजह क्या थी? वो कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स थी और वो एनर्जी ने क्रिएट किया। तो रूट कॉज क्या निकल रही है? वो एक एनर्जी बन रही है। अब खुदा बोलो ना बोलो, लेकिन वो एनर्जी बोल रहे हैं, मैटर बोले, लेकिन दिस इज ऑल्सो द न्यू वर्जन ऑफ व्हाट? मटेरियलिज्म। सही है ये। उसके बाद फिर एक और डिबेट है दैट इज कॉल्ड आइडियलिज्म। इसके लिए इसको आइडियलिज्म को ऐसे समझे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको
कि प्लेटो एक फिलोसोफर है, इज अ फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म। उसकी एक थ्योरी है एलेगरी ऑफ द केव। इसकी मैं वीडियो लिंक भी शायद मैंने लास्ट में लगाई है, वो आप स्लाइड में देखिएगा। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। केव थ्योरी के नाम से मशहूर है केव थ्योरी। एलेगरी एक एनालॉजी को एग्जाम्पल को कह रहे हैं यहाँ पे। 3 प्रिजनर्स होते हैं, वो चेन अप होते हैं एक केव में, और उनके सामने उनके वॉल पे शैडो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है फ्रॉम द लाइट, फ्रॉम द फायर। और काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस के बाद दे बिलीव के शैडो इज द रियल वन, क्योंकि वो कभी केव से बाहर निकले नहीं थे। उस केव में देयर इज अ बीम ऑफ लाइट, एक रोशनी की किरण, वो रिफ्लेक्ट होती है, या पे वो फायर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो शैडो को रियल समझते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बिहाइंड जा रहे हो या वो खुद हैं, तो उन्होंने क्या देखा, वो ये समझते हैं कि एवरीथिंग इज शैडो, एवरीथिंग इज शैडो, ये समझ बैठ। उनमें से एक अनप्रेजेंट होता है, अनचेंड होता है, आज़ाद हो जाता है, वो बाहर जाता है केव से। जब वो केव से बाहर जाता है तो बाहर जाके वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है, वो कहता है अरे इट्स मी, ये मैं ऐसा हूँ, मैं तो शैडो समझा था। फिर वो ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने की कोशिश करता है, गर्ल्स प्लीज, वो ऑब्जेक्ट्स को तो हाथ ना है, तो फिर उसको पता लगता है कि नहीं ये तो फॉर्म है, ये तो इस कंसिस्ट ऑफ द मैटर। फिर इसी तरीके से वो सोर्स देखता है, सन, कहता है अच्छा दैट इज द रिफ्लेक्शन, ये था, तो हम तो इसको नॉलेज समझ रहे थे। अब वो भागा भागा जाता है केव में। तो पहले तो बताएं, लोग उसकी बात मान लेंगे? वो जो 2 जो प्रिजनर्स हैं, क्या वो उसकी बात पर रिलाई करेंगे? क्या करेंगे उसके साथ? क्रेजी हो गए हो तुम, पागल हो गए हो तुम, हाँ। और कोई यकीन नहीं करेगा, कोई करेगा भी तो ये कहेगा कि सीइंग इज बिलीव, देखूंगा तो जानूंगा, ऐसे ही ना। तो इस थ्योरी से प्लेटो ये बता रहा है कि रियलिटी इज नॉट इनसाइड द केव, रियलिटी इज आउटसाइड द केव, एंड द केव इज योर माइंड, द केव इज योर माइंड। ये एक मेटाफोर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, वो एक एनालॉजी है। आज भी देखा जाए तो हम भी बहुत सारी रियलिटी को कहाँ से देखते हैं? टीवी से, फैब्रिकेटेड वन, द हाइपर रियलिटी। ये आज के ज़माने के नए फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने भी, तो प्लेटो तो बहुत वो एंशिएंट एरा का फिलोसोफर है, लेकिन आज के ज़माने के बहुत सारे सिमिली जो है बुडरार्ड वगैरह हैं, लोटार्ड है, बहुत सारे ऐसे नाम है, फ्रेंच हैं, वो कहते हैं कि हाइपर रियलिटी, कॉपी ऑफ द रियल, नथिंग इज रियल। ये व्हाटएवर वी सी इन फ्रंट ऑफ अस, ये क्या है? एक पैनोप्टिकॉन है। पैनोप्टिकॉन समझते हो? पैनोप्टिकॉन एक जेल की मानंद होता है। जैसे कि इस वक्त भी एक तरह से कि इस वक्त विजन ऐसा बन रहा है कि एवरीवन इज वाचिंग मी एंड मी इज आल्सो वाचिंग द एवरीवन। जैसे कि वो आपने देखा होगा, वो एक जेल होती है तो उसमें भी वो जो गार्ड है वो इस तरह से सेल बनाए जाते हैं पैनोप्टिकॉन सर्कल में कि एवरीवन इज बीइंग वॉच एंड एवरीवन इज वाचिंग। So just like that, we are trapped in that society with the use of all social media platform. Everyone is being watching, and everyone is watching each other. There is no privacy and there is no freedom as well. Everyone is bound by some structure. ऐसे कुछ है, influenced है, structured है। तो खैर, प्लेटो की केव थ्योरी हमें क्या सिखाती है, बताती है, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। वो ये कहती है कि रियलिटी बेसिकली क्या है? आइडिया है। रियलिटी एक आइडिया है, क्योंकि हम जो कुछ शेडो के जरिए देख रहे हैं वो रियल नहीं है। शेडो का मतलब क्या है? सेंसेस से, 5 सेंसेस से जो भी कुछ देख रहे हैं, आपको पता है 5 सेंसेस तो डिसीव करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको फीवर बता रहे हैं, मगर वो फीवर जो है उसकी वजह से आपकी जो टेस्ट बर्ड है वो डिफर कर गए। तो आप अगर सेंसेस पे रिलाय करें तो आपको जो स्वीट है वो बिटर साउंड कर रहा होगा, मगर आपका माइंड डिक्टेट करेगा नो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से आप हाइकिंग पे जा रहे हैं तो वो आपको क्लोजनेस, आपने कहा बस ये अभी हम नियरेस्ट है, लेकिन वो तो आपकी आंखों का धोखा है। ऐसे ही सॉलिड गैस है, आपने कहा अभी तो कन्वर्ट हो गई, वो ट्रांसफॉर्म हो गया, आपने कहा कहाँ गया पानी, वो तो पता लगा एवोपरेट हो गया। आप कहेंगे नहीं, साइंटिफिक रीजन है, ये कोई मैजिक थोड़ी ना हुआ है। तो जस्ट लाइक दैट वी कैन नॉट बी कंप्लीटली रिलाई ऑन आवर सेंसेस डिसीव अस, तो वी कैन यूज आवर रीजन, माइंड। तो यही बात यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रियलिटी इज एन आइडिया, एब्सोल्यूट रियलिटी इज व्हाट? इज एन आइडिया। रियलिटी आइडिया है। तो वो कहता है एवरीथिंग इज शैडो ऑफ इट्स रियल फॉर्म, एवरीथिंग इज शैडो ऑफ इट्स रियल फॉर्म। यानी दुनिया में जो कुछ दिख रहा है वो बस एक रिफ्लेक्शन है, वो एक शैडो है, उसका रियल क्या है? आइडिया। इसी वजह से इसको कहते हैं आइडियल फिलोसोफर या आइडियलिज्म। आम मायने में तो अलग है। हम क्या कहते हैं, जो लोग बहुत ख्याली होते हैं, हम कहते हैं या तो बहुत आइडियलिस्ट हो, ये वो आइडियलिस्ट नहीं है। इसको आप इतना लेमन पर्सपेक्टिव में ना देखें। यहाँ आइडियलिज्म का मतलब क्या है? दोज हु बिलीव दैट रियलिटी इज एन एब्सोल्यूट
आइडिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ये डिबेट है रियलिज्म, आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म की डिबेट है। फिर इसी तरीके से एक और डिबेट है कि आप, बल्कि लास्ट क्लास में मुझसे दो स्टूडेंट्स आके पूछ भी रहे थे कि सर आप क्या मानते हैं, आप क्या कहते हैं, रियलिटी सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, ट्रुथ जो भी है वो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ही कुछ है। व्हाट डज इट मीन के वी परसीव द थिंग या द थिंग इटसेल्फ इज हियर, वी डोंट नीड एनी परसेप्शन ऑफ इट। यानी मैं इस दुनिया को, द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज यू सी इट, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन का आर्टिकल, कि हम जैसा देख रहे हैं दुनिया वैसी है, या एक्चुअल में दुनिया अपनी जगह मौजूद है, हम उसको शायद नहीं देख पा रहे। दोनों अप्रोचेस हैं कि रियलिटी इज इनसाइड द माइंड या रियलिटी इज आउटसाइड द माइंड, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म या ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ये बात समझते हैं आप लोग? सब्जेक्टिव का मतलब क्या? आई एम अ सब्जेक्ट, माई माइंड इज अ सब्जेक्ट, आई हैव एन ओन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स माई ओन अवेयरनेस, सो आई नो माई सेल्फ, माई एक्सपीरियंस विद माई सेंसेस, विद माई रीजन, विद द यूज ऑफ इट। ठीक है हो गया। और एक ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं, आपका परसेप्शन, आपके मीनिंग, आपके इंटरप्रिटेशन मायने नहीं करते। जैसे फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि देयर इज अ फैक्ट ओनली एंड द रेस्ट आर द इंटरप्रिटेशन, द रेस्ट आर द इंटरप्रिटेशन। सारे जो झगड़े हैं वो इंटरप्रिटेशंस के हैं। तो ये दो डिबेट के सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है कि ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग थिंग, द मोर इंटरेस्टिंग थिंग, प्लेटो, आपने इससे पहले कभी प्लेटो का नाम या प्लेटो का रिमार्केबल वर्क अगर आपको पता हो या ना हो, प्लेटो ने एकेडमी बनाई ग्रीक में, कभी ग्रीक जाना हो तो वहाँ पे, या आप देखते होंगे यूनिवर्सिटीज के जो लोगो डिजाइन होते हैं वो अकेडमस का लोगो वही बना हुआ होता है। तो प्लेटो का स्टूडेंट है एरिस्टोटल, बट स्टिल अपने टीचर को काउंटर करता है वो, दे आर द रैशनल वन ना, मैंने कहा वो अपने टीचर को काउंटर करता है कि नहीं, आई डोंट बिलीव कि बाकी ठीक है सारी फिलॉसफी, मगर मैं ये नहीं मानता। क्या नहीं मानता? कि जो भी रियलिटी है वो एक आइडिया है। बल्कि एरिस्टोटल कहता है कि ट्रुथ रिसाइड अराउंड अस इन द वर्ल्ड, ट्रुथ रिसाइड्स मींस द रेजिडेंस ऑफ इट अराउंड अस। सच जो भी है वो कहाँ है? इन आवर सराउंडिंग, इन आवर एनवायरनमेंट, वी कैन सी फ्रॉम बाय अदर ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आप यहाँ देख लें, अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो नंबर वन थिंग इज द मटेरियल फॉर्म, उसका एक मैटर होता है। जैसे कि मेरे सामने ये टेबल है, तो इस टेबल का एक मैटर है वुड, इसका एक मेटल है, मेटल एक मटेरियल फॉर्म है। द सेकेंड वन इज फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ इट, जैसे ये रूम आप देखें डिजाइन हुआ है तो इसका एक मटेरियल है, रॉक्स एंड कंक्रीट, फिर इसकी एक फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड है। द थर्ड वन इज एफिशिएंट वन, दोज हु क्रिएट, एंड द लास्ट वन इज द फाइनल कॉज ऑफ इट। अब आप एक ट्री को देखें तो ट्री का मटेरियल फॉर्म क्या है? जो उसकी सीड है, ठीक है, फिर उसकी फॉर्मल, उसका एक स्ट्रक्चर्ड है, फिर उसके बाद एफिशिएंट कॉज, जिसने उसको जर्मिनेट किया है, चाहे वो नेचुरल प्रोसेस से हो या ह्यूमन, या फिर लास्ट क्या है? इट हैज अ पर्पस, कि फ्रूट दे या फल दे या शेडो दे। गॉट माय पॉइंट? हर चीज को देखें, अब ह्यूमन के ऊपर अप्लाई कर लो इसको। ह्यूमन का एक मटेरियल फॉर्म है जिससे वी आर कंपोज ऑफ इट, आवर बॉडी कंपोज ऑफ सम एलिमेंट एज वेल। फिर एक फॉर्मल है जिसकी वजह से हम ह्यूमंस कहलाएंगे, और हम कहेंगे कि नहीं ये तो एलियन है, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर में फॉलो नहीं हो रहा। फिर थर्ड एफिशिएंट कॉज, हमें बनाया, खुदा ने बनाया, जो भी। फिर उसके बाद लास्ट द फाइनल, व्हाई वी क्रिएट, यानी ह्यूमन की कोई एक फाइनल कॉज भी होगी। तो एवरीथिंग हैज सम रीजन, एवरीथिंग हैज अ कॉज। इसको कहते हैं टेलियोलॉजी। हर चीज बेमायने नहीं है। एरिस्टोटल का मानना यह है कि एक एक्चुअलिटी और एक पोटेंशियलिटी। पोटेंशियलिटी का मतलब यह है कि जैसे कि सीड है, सीड का पोटेंशियल है टू बिकम अ ट्री, बट एवरी सीड नॉट बिकम अ ट्री, बट एवरी सीड हैज अ पोटेंशियल टू बिकम अ ट्री। और जस्ट लाइक दैट एवरी ट्री नेवर बी गिव अ फ्रूट एज वेल। ठीक है, तो ये सारी बात क्लियर हो गई। जैसे जितने भी इंसान है, ह्यूमन है, एवरीवन हैज द सेम पोटेंशियल, बट इन एक्चुअली वेयर वी आर। तो ये जो बात है ये बार बार इसी तरफ जाती है कि भाई कॉज पे जाएं आप, ये रियलिटी की डिबेट्स। इसी तरह ये एक और डिबेट है, ये और इंटरेस्टिंग है, ये भी ऑन्टोलॉजिकल में ही आती है। ह्यूमन नेचर इट कंसिस्ट ऑफ 3 सोल। ये आपने बहुत पॉपुलर क्लासिक आइडिया है कि ह्यूमन हैव द 3 सोल। अब वो 3 सोल क्या है? अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें तो हमारे पास जैसे ये एब्डोमेन, एपिटाइट सोल है फ्रॉम द लोअर बॉटम, सही। द सेकेंड इज
chest यानी emotional, spirit, and the upper one, the mind, rational, reason. So we have a three soul: rational soul, spiritual soul, and the third one is appetite soul. ठीक हो गया? और फिर वो इसको एक एनालॉजी से, क्योंकि प्लेटो मेटाफोर का इस्तेमाल करता है एक्सप्लेन करने के लिए, ही से दैट चैरियटर एनालॉजी. चैरियटर पता है ना? चैरियटर, उसके पास हंटर है और वो उसके सामने दो हॉर्सेस हैं, एक डार्क हॉर्स है और एक वाइट हॉर्स है. जो डार्क हॉर्स है वो डिजायर है और जो व्हाइट हॉर्स है वो इमोशन है. और चैरियटर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? रीजन को. तो कंक्लूजन क्या है कि रीजन हैज अ फंक्शन टू कंट्रोल ओवर डिजायर एज वेल एज इमोशन. सुना हमने वो मैन इज अ रैशनल सोशल एनिमल. ये बात वही कर रहे हैं कि इंसान जो है वो क्या करता है? ट्राई टू बी कंट्रोल विद द यूज ऑफ रीजन. दे विल कंट्रोल ओवर द डिजायर एज वेल एज द इमोशन. तो ये जो कॉन्सेप्ट इस तरह के, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल के who we are, what is our real self. So Socrates say our rational soul, Plato say again the rational soul, but साथ में स्पिरिट भी है, इमोशन भी है. लेकिन अगर हम ख्वाहिशात के गुलाम हो जाएं तो फिर ख्वाहिशात हमें कहाँ ले जाएं? इसी तरीके से अगर हम इमोशंस और पैशन के ताबे हो जाएं, ओबे करने लग जाएं, इसलिए तो फिर और सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे एक एनार्की फैल जाएगी. तो दैट्स व्हाई द रीजन कम, जो दोनों को बैलेंस करता है. मगर ये आंसर दुरुस्त नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपके पास दुनिया जहां का नॉलेज आ जाए और रीजन हो, तो क्या रीजन आपको बहका नहीं सकती? रीजन आपको डिसीव नहीं कर सकती? ऐसे ही है ना, जैसे गालिब का हो ना कि जानता हूं सवाब व ताहत मगर फिर भी तबीयत इधर नहीं आती. मतलब सब पता है अच्छा क्या बुरा क्या, तो वो क्या चीज़ होती है? तो वो फिर रिलीजियस आंसर है जो सेंट ऑगस्टीन, एस्लम और सीना वगैरह ने जवाब दिया. वो ये है कि आपका जो ईगो होता है, जिसको नफ्स कहते हैं, प्योर, वो प्योरिटी अभी ज़रूरी है. वो जो प्योरिटी होती है वो आपको रोकती है ये डिज़ायर इमोशन से. आपको तीनों को काबू करना होता है. रीज़न को भी कंट्रोल करना होता है, डिज़ायर को भी कंट्रोल करना होता है और इमोशन को भी कंट्रोल करना होता है. तो खैर ये तो पुराना एक कॉन्सेप्ट था. मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए आपके सामने रखी, डिबेट. फिर उसके बाद माइंड बॉडी प्रॉब्लम. हेल्दी माइंड प्रेजेंट इन अ हेल्दी बॉडी, अ हेल्दी माइंड प्रेजेंट इन अ हेल्दी बॉडी. यानी माइंड इज ग्रेटर देन द बॉडी, जब बॉडी इज इन्फ्लुएंसिंग आवर माइंड. ये दोनों डिबेट्स, ऐसे डिबेट्स, इनमें से विच वन इज द ट्रुथ, या दोनों सिंक्रोनाइज हैं, हार्मोनाइज हैं. ये भी थ्योरी है कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम में हम अलग नहीं कर सकते. ये क्लॉक की तरह से क्या है? प्री स्टेब्लिश हार्मोनी, प्री स्टेब्लिश हार्मोनी, जस्ट लाइक अ क्लॉक के दोनों एक साथ लिंक है तो हमें एक वक्त पता लग रहा है. इसी तरह माइंड बॉडी को अलग नहीं कर सकते. अब मुझे बताइएगा क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, क्या माइंड ट्रांसप्लांट हो सकता है? न्यूरोसर्जन जैसा कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है या कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कहते हैं? और अगर हो जाए तो क्या फिर कॉन्शियस लेवल का क्या होगा? ऐसा है. इस तरह तो फिर हम मेमोरी को रिस्टोर भी कर सकते हैं, फिर डाटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं. ये बहुत सारी नई डिबेट्स छिड़ जाएंगी. क्लियर है? फिर तो बर्थ और डेथ, ये कहते हैं ना कि हम अमर हो जाएंगे. कैसे अमर हो जाएंगे? जिस्म तो नहीं हो सकेगा लेकिन ख्यालात से तो हमको स्टोर कर लें उसको. तो ये सारी डिबेट. फिर माइंड बॉडी प्रॉब्लम में ये कि किसको डोमिनेटिंग करें, बॉडी को के माइंड को. क्लियर हो गया? जैसे रूमी का तो सिंपल सा आंसर है, जलालुद्दीन रूमी, कि एवरीथिंग विल बी कम इन द अनदर फॉर्म, एवरीथिंग विल बी कम इन द अनदर फॉर्म. वैसे तो उनका ये था कि डोंट ग्रेव फॉर एनीथिंग, कि किसी चीज़ का गम ना करो, एवरीथिंग विल बी कम इन द अनदर फॉर्म. हर शय जो है वो दोबारा आती है ट्रांसफॉर्म होके. जैसे हम ह्यूमन बॉडी डिकम्पोज हो जाती है तो हम मट्टी, आँख, गारा बन जाएंगे दोबारा से. लेकिन अब सोल के बारे में क्या करें? तो ये सारी डिबेट्स सही है भाई. ये सारी डिबेट्स जितनी भी मैंने अभी की है, ये कैसी डिबेट्स हैं? ये सारी मेटाफिजिकल और ऑन्टोलॉजिकल डिबेट है. मैंने कुछ डेमोस्ट्रेशन देने के लिए किए. ये तो ना बहुत पूरे पूरे टॉपिक्स हैं. जैसे मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वहाँ 14 लेक्चर सेशंस मिलते हैं, 16 लेक्चर सेशंस मिलते हैं. तो वहाँ पूरे एक सेशन में फ्री विल की डिबेट्स पढ़ रहे हैं, फिर ह्यूमन नेचर की पूरी डिबेट्स हम पढ़ रहे होते हैं, फिर वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे पूरा एक लेक्चर सेशन हो रहा होता है. खैर आप लोगों के पास भी है वेरी शॉर्ट ऑफ लेक्चर्स, तो मैंने जब खाली आपको एक आइडिया दिया. अब जैसे आइडेंटिटी को लेके, आई थिंक देयरफॉर आई एम, हु एम आई? ये एक फ्रेंच वो है, कॉजिटो एर्गो सम. हु एम आई? आई एम अ थिंकिंग बीइंग, आई एम अ रैशनल बीइंग.
ठीक है, तो क्या आपकी आइडेंटिटी फिर क्या है? अगर आप स्किन ये देखें ना, ये तीनों क्या एक ही आइडेंटिटी है, अलग है ये सब, ऑल आर द सेम। क्या आप बदल सकते हैं अपने आप को? आप कहेंगे नहीं हम एस्थेटिक क्लिनिक चले जाते हैं बदल जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन माइंड का क्या, सब्जेक्टिविटी जो है उसका क्या करेंगे, जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसका क्या करेंगे? तो दैट इज द डिबेट ऑफ आइडेंटिटी। ये सबसे पॉपुलर डिबेट है फिलॉसफी की, और ये भी मेटाफिजिक्स में ही आती है कि फ्रीडम है या नहीं, फ्रीडम पॉसिबल है या नहीं। अब यहाँ जो बहुत से लोग हैं, दोज हु बिलीव के एवरीथिंग इज डिटरमाइंड, क्लास व्हाट डू यू बिलीव इन दैट? वी आर एब्सोल्युटली फ्री, और द सेकंड पोजीशन इज दैट कि नो, वी आर डिटरमाइंड, वी आर डिटरमाइंड बाय द सम फैक्टर। अब सम फैक्टर में लक हो, फेट हो, डेस्टिनी हो, लोहे कलम हो, खुदा हो, क्या मानते हैं आप? Determinists or free will? So how many are determinists? Those who believe that everything is pre-written. जी, आप लोगों से पूछ रहे हैं, थोड़ा सा एक इनपुट दे दीजिए आप लोग। What do you think so? Everything is pre-written or predetermined? जी, क्या लगता है? देखिए, दो फिलोसफिकल पोजीशन है, वन इज एवरीथिंग इज प्री-रिटन, एवरीथिंग इज प्री-डिटरमाइंड। सेकंड थर्ड रॉ वॉइस, yes, what do you think so? Everything is pre-written, predetermined, और we are absolutely free? वैसे तो मुझे फ्री लग रहा है, whatever you want to be, फ्री विल मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम नजर आ रहा है, दोनों है। तो उस पोजीशन को कोई टेक्निकल नेम पता है या क्या? somehow we are free, somehow we are determined. For example, can you put the some example of it? इनका कहना ये है कि सम इवेंट, सम एक्शंस आर फ्री। क्या कह सकते हैं, जैसे कि बर्थ एंड डेथ। वैसे तो ये भी क्वेश्चनेबल आज, बर्थ एंड डेथ इज, जैसे कहते हैं बर्थ इज डेथ इज नॉट इन आवर हैंड, लेकिन ये जो बायोएथिक्स की नए मोरल डिलेमास और मोरल केसेस आए हैं, केस स्टडीज, उसमें तो ये भी एक क्वेश्चनेबल हो गया कि बर्थ इज ऑल्सो इन आवर हैंड, IVF, क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोन वगैरह, या फिर डेथ भी इन आवर हैंड कि वो सुसाइड मशीन हो भाई, आई हैव अ राइट टू डाई, जैसे ना आई हैव अ राइट टू लिव। तो दिस इज ऑल्सो द ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन एक्ट में कि आई हैव अ राइट टू डाई, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ। तो ये कहना भी आज के इस एरा में, पहले तो मैं ये कह देता 5 साल 10 साल पहले कोई टीचर तो ये बात समझ आ जाती कि द बर्थ एंड द डेथ इज नॉट, लेकिन आज ये कहते हुए जो सामने से काउंटर भी हो सकता है कि सर आपको क्या पता नहीं है कि आजकल सुसाइड का भी एक क्लॉज और भी है कि वी हैव अ राइट टू, वी आर नॉट लिव इन द वेस्टर्न सोसाइटी। बट ये एक डिबेट ये भी है कि बर्थ ये आपके हाथ में, ह्यूमन इंटरवीन कर सकते हैं, जेनेटिक भी क्या है, वो जेनेटिक म्यूटेशन से होते होते जेनेटिक ऑल्ट्रेशन पे आ गए कि आप जीन्स में भी चाहें तो क्रोनिक डिजीज को खत्म कर दें, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मेरा नहीं, DNA फिक्स होता है, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं नहीं हम उसको ऑल्टर करते हैं, कुछ ऐसा है। ये सारी साइंसेस है ना रिसेंट टाइम, तो आपके बहुत सारी फाउंडेशंस को फिर वहां आता है आपका मोरल वैल्यूज कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। पॉसिबल है करना, लेकिन करना है या नहीं करना है, दैट इज अ ह्यूमन कंडक्ट, दैट इज अ ह्यूमन एक्शंस। तो खैर एनीवे, यहाँ पे समहाउ जैसे उमर खयाम का कहना है कि वी आर जस्ट अ यूजलेस पीस ऑफ द बोर्ड और समवन अदर इज प्लेइंग विद अस। ये जो डे एंड नाइट है, ये चेस बोर्ड के पीसेस हैं व्हाइट एंड ब्लैक, वी आर जस्ट अ यूजलेस पीस ऑफ द बोर्ड, समवन अदर इज प्लेइंग, या वी आर द पपेट। और इसके लिए एक और, जैसे हम कहानी देखते हैं, प्रोफेसी समझते हैं ना, प्रोफेसीज क्या होती है, फ्यूचर पहले से प्रेडिक्ट